why does AR Desai matters? So I'll begin with the question, why does AR Desai matters? Okay. Now, before you answer me this question, I like to ask all of you to revise what Gure and M. Srinivas has had conducted their studies or had done. Okay, then only you would see that how AR Desai and why AR Desai matters. Okay, because you would see that AR Desai has given a very different approach. Both Gure and M. Srinivas somewhere reflected on structural functionalism. Okay, they did reflected on sociology. Okay, now you need to know that why AR Desai is talking, I would say, very deeply on Indian society, but he has shifted a tradition. Okay, anyone who has any idea on this? On AR Desai? Any idea? So guys, AR Desai was one of the most influential Indian sociologists. Okay, why? Because he has uses Marxist approach to understand society. It would not be incorrect to say that he is Marxist, first Marxist sociologist of India. Okay, so here you people will write down this important part. Marxist sociologist and is the pioneer. Often we all think to get into the services, prepare for civil services, right? Joining coaching or doing self-studies. We do often forget that we must apply our commonsensical understanding, to understand any subject. How it can be if you can trick your brain, if you can make connections. So we know that what are we doing? We are discussing thinkers. Before bringing new thinkers, you must revise, you must, you must tickle your neurons in the brain which is already present with respect to other thinkers. Now, this is what I say snowball sampling method. I mean, this is what, we researchers do and conduct research. You must have studied in research methods and methodology. So how it is that if you want to have complete whole on sociological concepts or on thinkers, you need to relate one thinker to another to another. So what I did here, I discussed, I reflected on Gure, then Srinivas, right? So I would say you must bring these kind of approaches, then only you will understand that how in UPSC, fundamentally, I would say it's easier to remember the concepts. What is the most difficult part? I'm not denying the most difficult part is answer writing and writing in a crispy, in a coherent manner. Same with prelims. Okay, so these are the two areas which require self-study. I believe other areas, and yes, apart from these two things, note making. Okay, now can you just revise in your head? Do not have to tell me, just revise in your head what Gure was saying for Indian society, what Srinivas were saying. Now, if you just revise in two terms only, so you would say कि Gure का, शिवांश आप बताओ बेटा, Gure का इंटरप्रिटेशन क्या था, उनका अप्रोच क्या था? Gure का, ये तो श्रीनिवास का था. श्रीनिवास का फील्ड वर्क था, फील्ड व्यू
इनका था बुक व्यू, राइट। बस इतना भी अगर आप लोगों को याद रह गया, it will be good, because we are not discussing or revising our Gure or Srinivas, we are discussing Marxist, air design. तो आप गुरे का थोड़ा सा दिमाग में रखो, अच्छा गुरे ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए श्रीनिवास, नाउ यू नीड टू सी कि एयर डिसाई कैसे डिफरेंट है. ओके, सो ही ब्रॉट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? Mishra, Akansha, because this is like camera is switching off again and again. Yes, ma'am. You are audible. Okay, so what he did, he brought historical materialism into Indian sociology. Write down, into Indian sociology. Now, think on your own. तनिष्क, आप बताओ बेटा, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? मतलब मार्क्सिस्ट ने जो किया, मार्क्सिस्ट ही ब्रॉट विच अप्रोच, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. क्या गोरे ने किया या श्रीनिवास ने किया ऐसा? अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है, क्या घूरे और श्रीनिवास ने किया जो मार्क्सिस्ट ने किया या डिसाइड नहीं किया? नहीं. हमेशा याद रखो बोलने में भी ना, बिकॉज सी आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर योर सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट एंड ऑल. हमेशा आपको बहुत कम बोलना है, तो पहले क्वेश्चन को समझो, जरूरत ही नहीं है आप मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. आई सिंपली आस्क के क्या किया, सो नो 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 ही डिड नॉट डू इट. ओके, तब नाउ यू कैन स्पीक फर्दर. तो इसका मतलब है इन्होंने नहीं किया, तो फिर ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो इन दोनों ने नहीं किया? तो यू कैन से कि देसाई जो है वो चैलेंज कर रहे हैं किसको? जो भी एक एस्टेब्लिश सोशियोलॉजी थी इंडिया में. नाउ दिस इज द वे वी नीड टू इंट्रोड्यूस एयर डिसाई. Okay, so air design has brought a paradigm shift in analyzing Indian society. How? Bringing historical materialism and challenging the established theories such as, अगर मैं गुरे की थ्योरी बोलूं तो कनिका नाम ऐड कर दे. कनिका नहीं, थ्योरी अप्रोच क्या है? इंडोलॉजिकल. श्रीनिवास की अगर पूछूं तो नहीं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच. ठीक है, कल्चरलिस्ट. तो एयर डिसाई से पहले हमेशा याद रखना, एयर डिसाई ने फिर क्या किया ऐसा जो आप लोगों को याद करना है. इंट्रोडक्शन में आप हमेशा लिख सकते हो, चैलेंज किया इन्होंने. ओके, प्लीज रिमेंबर कि ये एक एक वर्ड जो आप लोग लिखोगे अपने आंसर में, वो मीनिंग ही बदल देगा, आर्टिकुलेशन ही बदल देगा आपकी आंसर राइटिंग का. एक बेसिक पॉइंट के साथ भी जब आप ये वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा है कि मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि जब भी आप एयर डिजाइन की बात करते हो, बड़े से बड़े सोशियोलॉजिस्ट के लाइक इंडियन हो या फिर फॉरेनर्स हो, जब भी वो थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं और अगर वो एयर डिजाइन की बात करते हैं, तो वो ये टर्म हमेशा यूज करेंगे, चैलेंज. ओके, तो इससे ये समझ में आता है कि उस जमाने में लाइक दैट टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग, so it was a big thing and indeed it was a big thing.
उनकी एक बुक थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जितनी वो पहले तो कोशिश ये की गई कि ये बुक पब्लिश ही ना हो, सारे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस बेटा क्लास में आओ कार्तिक, लेकिन जब वो पब्लिश हुई उसके बाद सबसे ज्यादा वो रिपब्लिश्ड हुई, लेकिन वो रिवाइज्ड हुई। ओके, तो कह सकते हैं कि एल देसाई का जो ऑरा था वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के जैसा ही था। उनके फादर भी काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे, डेफिनेटली फ्रीडम फाइटर थे। ओके, तो जब भी आप एल देसाई की बात लिखोगे कोशिश करोगे आप ये वाला वर्ड यूज करना, ठीक है। चैलेंज्ड, क्या क्या चैलेंज किया? कल्चरलिस्ट अप्रोच जो कि इंडिया में था। ओके, समझ में आ रहा है कांशा? सिविलाइजेशनल, Yes, ma'am. civilizational and purely ideological approaches. So there was a time when scholars, sociologists explained India through religion, tradition, caste, values, village harmony. He did not do that. कार्ल मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्कर्स के लिए शिवांश? वर्कर्स के लिए मतलब जनरली अगर तुम कार्ल मार्क्स को रीड कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा होगा वर्कर्स के लिए? कि स्क्रीन खराब ही है, बोलो स्क्रीन खराब है, मेल भी लिख दिया सब कुछ कर दिया फिर भी ये खराब ही खराब है। कार्तिक का है, कार्तिक ने आपको कॉल करने के लिए किया, डब्ल्यू ही है वो, बोलो वहीं रहे, जाओ आप जाओ। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं, क्वेश्चन सुनो और मुझे सिर्फ एक लाइन में आंसर दो। वर्कर्स के लिए उनका कंट्रीब्यूशन कार्ल मार्क्स का क्या था? अब सुनो, ठीक है, रिलैक्स होके। लेट्स जस्ट से आईआईटी का कंट्रीब्यूशन तुम्हारी लाइफ में क्या था? पढ़ाया उसने तुम्हें, है ना, तुम्हें एक विजन दिया, है ना। ओके, तो उससे आपके अंडरस्टैंड, ओके फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी मेरे से पढ़ी, मैं ये पूछूं कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, तो आप एक स्पेसिफिक बात बोलोगे ना, क्या पढ़ाया, क्या स्पेसिफिक बताओ ना। सोशियोलॉजी पढ़ाया, सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आई, मुझे पता नहीं था क्या, राइट। अब उसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स के लिए क्या किया? वर्कर्स के लिए क्या किया? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये, आई एम टेलिंग यू, इतना डीप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप थिंकर्स को समझना शुरू कर दोगे। थिंकर्स आर, यू विल नॉट हैव टू रीड थिंकर्स इन अ बुकिश मैनर, जस्ट थिंक व्हाट ही डिड टू वर्कर्स। वेरी गुड, अपलिफ्ट किया, बिकॉज दीज वर्कर्स वर इन इल्यूजन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी राइटिंग से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या उनका जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, जो एडिटोरियल भी थे वो, लेकिन वो लिखते थे, उससे ना एक तरीके से अवेयरनेस स्टार्ट हुई वर्कर्स के दिमाग में। उनका एक स्टेटमेंट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, रेवोल्यूशन ले आया। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा कार्ल मार्क्स का वर्कर्स के लिए? उनको जागरूकता मिली, अवेयरनेस मिली, उनको समझ में आया कि भाई दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, एक्सप्लॉइटेड।
Now, think like that only with respect to air Desai. So, sociologists, if you'll see, as per Emile Durkheim, we considered as social physicists, like a doctor of a society. सोसाइटी में लोगों को, इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट को, जो भी हम समाज में देख सकते हैं, उन सबके हम क्या है, यू कैन से डॉक्टर, सर्जन एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग टू इमाइल Durkheim. Now, when Air Desai Srinivas Ghure was writing, इंडिया में क्या हो रहा था कनिका? We were about to get freedom, Indian nationalist movement. Now, at that point of time, scholars were definitely helping by discussing religion, tradition, caste values, or village harmony. Desai argued that Indian society must be understood through class relations, colonial exploitation, capitalist development. अब इससे क्या हुआ, जो वर्कर्स थे या फिर जो लोअर क्लास लोग थे, उनको समझ में आया कि एक्चुअली में वी हैव बीन यूज्ड. जो एलीट क्लास थे, जो उनको मोबिलाइज कर रहे थे, उन लोगों को तो पावरफुल पोजीशंस मिल गई. कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो कोई कुछ बन गया, तो कोई कुछ बन गया. लेकिन गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कहां पे शुरू किया था? ये मत बोलना कि अब आपको ये नहीं याद है. आकांक्षा, आप बताओ. अहमदाबाद पहले कौन सा था सबसे फेमस रेवोल्यूशन? उनका जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था, नॉट रेवोल्यूशन लाइक प्रोटेस्ट, नहीं नहीं, इंडिया में किसके लिए उन्होंने सबसे पहले फाइट किया था? इंडिगो के लिए कि नहीं? पीजेंट्स, वर्कर्स के लिए तो उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी. गाइस, ऐसे नहीं होने वाला आपका सिविल सर्विसेज क्रैक. जो सबको पता है ना, वो अगर आपको नहीं पता है तो फिर बहुत बहुत मुश्किल बात होगी. गांधी जी, अंबेडकर, गांधी जी एंड अंबेडकर, गौतम बुद्ध, ओके, ये तीन पर्सनालिटीज तो आप लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. सारी चीज उनको फैक्ट्स की तरह याद करो. ओके, एनी हाउ, अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैंने भी कुछ पॉइंट्स बनाए फ्लो चार्ट की तरह. यही फ्लो चार्ट अगर आप अपने एग्जाम में यूज कर लोगे, यू विल गेट रियली गुड मार्क्स. जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, आई मेक सम फ्लो चार्ट्स. ओके, आप लोग कोशिश किया करो दैट यू पीपल शुड कॉपी माय फ्लो चार्ट्स. राइट नाउ, सी, I have explained all this point, how your answer should look like. After giving all this point, right, I have given, if anybody would see my notes or like my class, this flowchart. So why does air decide matters? Okay, he's a Marxist sociology. He brought historical materialism into Indian sociology. Then Ghure this. Then I've given some explanation here. Then Marxist challenged these points. Now I would be writing 2-3 lines on it. Okay, please write down and see how it look like. So I would say, at a time when many scholars explain India when many scholars explained India through religion, tradition, caste, values,
caste values, okay, or village harmony. Desai argued that Indian society must be understood through stop eating whatsoever you people are eating. Desai argued that Indian society must be understood through ओके यहाँ पे ऐसे करने के बाद आप फिर से एक फ्लो चार्ट कुछ बनाने की कोशिश कर लो ओके तो योर आंसर वुड लुक वेरी नाइस क्लास रिलेशन ओके राइट डाउन colonial exploitation ऐसे ही आप लोगों को बनाना है colonial exploitation capitalist development state power ये कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है इसको लिख लो साइड में कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट स्टेट पावर ओके स्टेट पावर एग्रेरियन कॉन्ट्रडिक्शंस social movements social movements now see this I have given this points okay आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा एयर डिसाइड के लिए उसके हिसाब से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे बीच में आपने ऐसा कुछ पॉइंट्स लिखा ओके फिर आपने क्या किया आपने ये कुछ वर्ड्स में ये एक्सप्लेन किया अब जो आपका हाईलाइट है उसको हमेशा आप साइड में लिखने की कोशिश करो अपने आंसर्स में या एक अलग पॉइंट शिफ्ट दिखाने के लिए ताकि जैसे कि यू मस्ट हैव गॉन टू रेस्टोरेंट्स ठीक है जहाँ पे बफे होता है राइट तो ऐसा होता है ना सारे खाना सारे डिशेस अलग अलग लगी रखी हुई है उसको इसी तरीके से समझो अगर आपके आंसर्स में भी जो मेन मेन पॉइंट्स है वो एग्जामिनर को सामने ही दिख जाए वो आपको मार्क्स दे देगा कहीं ना कहीं वो आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेगा सिविल सर्विसेज में जरूर अप्रिसिएशन मिलती है ओके तो अगर आप ये वाला पॉइंट जो मैं अभी बता रही हूँ यहाँ पे जैसे आप इसको लिखो एक बॉक्स बना दिया ओके एंड देन राइट डाउन he transformed sociology from descriptive study into critical political sociology he transformed sociology okay from descriptive study into from descriptive study into critical political sociology into critical political sociology. Now, can you think of writing an introduction of or by using all these points? Will you be able to do it? Right? Fine. Now, write down intellectual background. Okay, you must be knowing about
ये दो स्टार्टिंग की जो पेजेस है, दिस इज इनफ फॉर यू टू इंट्रोड्यूस हिम. ओके, नाउ you must also know intellectual background of any thinkers. Similarly, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने वेस्टर्न थिंकर के लिए किया था, वही हम इंडियन थिंकर के लिए भी करेंगे. सो देसाई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, नो गेस, बताओ, कोई प्राइज सरप्राइज नहीं, किससे इन्फ्लुएंस से? कार्ल मार्क्स. ठीक है, यस. और दूसरे कौन थे? फ्रेडरिक एंगल. कीप राइटिंग द नेम्स. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक्स, विलियम हेगल, ये सब नाम आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके अलावा लिखो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म लिख लिया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक्स, फ्रेडरिक एंगल. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों ने मिलकर लिखी है ना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स. तो इन दोनों से ही डायलेक्टिक्स, हीगल एंड ऑल. ठीक है, डायलेक्टिक्स एंड ऑल. अब एक और चीज, दो से तीन चीज लिखोगे, एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स, एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स पहला. ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इंडियन पीजेंट स्ट्रगल. इंडियन पीजेंट स्ट्रगल, तीनों. अब अगर आप सिर्फ ये की टर्म्स देख रहे हो, तो क्या आप बता सकते हो उनकी सोशियोलॉजी? तनिष्क, मैं फोन उठा के देख दूंगी आपका, वहां पर रखो, वहां पर रख दो. तो दोनों ही चला रहे हो एक्चुअली. चलो बताओ, अच्छा ये टर्म्स देखने के बाद क्या लग रहा है, किसके ऊपर इनका मेन फोकस है? हम्म, नहीं, अब कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट. ठीक है, वर्कर्स तो ठीक है, गुड, बट कॉन्सेप्ट, अगर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पूछूं मैं आपसे कि अगर इफ यू आर सीइंग द थिंकर्स नेम, एंटी कॉलोनियल पॉलिसीज, कॉलोनियल पॉलिसीज में, हाँ, कोई कॉन्सेप्ट बताओ सोशियोलॉजी. हाँ, नहीं, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर आंसर. पेपर 2 में आपको देखो, ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा, जहां तक मैं जानती हूँ, कोई बच्चा मेन तक पहुंचता है, पेपर 2 का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि किसी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नहीं आता हो, अनटिल कोई ऐसा कोई थिंकर का नाम ना हो, क्योंकि सारे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है. बात है कि अगर आपने सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया है कि नहीं किया. तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पूरी थ्योरी है ना. तो स्ट्रगल, ओके, और कोई ऐसे, जैसे आपने स्ट्रगल बोला, उसी से कोई सिनोनिम्स बताओ. ओके, वेरी गुड, वेरी क्लोज. कन्फ्लिक्ट को और बताओ. वेरी, क्लास स्ट्रगल हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू पीपल वुड राइट. पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज कर लिए आप लोग. एक, मैंने कितने स्टूडेंट देखे, एक स्टूडेंट मुझे वो कल भी मुझे बता रहा था कि मैम पेपर 2 के लिए बुक भी नहीं खोली थी मैंने, एंड 134 मार्क्स. थिंकर्स को अच्छे से पढ़ लिया था, जैसे क्लासेस में आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और एक चीज वो समझ में आ गया था, उसकी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सोशियोलॉजी, बस मुझे सोशियोलॉजी लिखना है,
जनरल इंडियन सोसाइटी लिखना ही नहीं है. ओके, सो प्लीज राइट डाउन दैट कार्ल मार्क्स व्हाट ही डिड, he believed that Indian sociology, ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे he believed that Indian sociology must explain inequality and exploitation. Not merely customs. He belonged to the generation, or some you can say he believed that Indian sociology must explain inequality and exploitation, comma, not merely customs. How many of you got the clarity? क्लियर है, बहुत इजी हो गया. ठीक है, इसका मतलब कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज थी, जो फिलोसफी थी, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने कुछ तो ऐसा ऑब्जर्व किया होगा ना, जिसकी वजह से इन्होंने सोशियोलॉजी का एक तरीके से शिफ्ट ही चेंज कर दिया. तो the lower class, lower segments of our society were hopeful कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई या मिल जाएगी, अब हमारा क्या होगा, प्रोग्रेस होगा, राइट. बट ऐसा हुआ नहीं था. So he did not study society as static. Keep writing this point. Desai did not study society as static. Desai did not study society as static. He examined Pella. How institutions emerge historically, how economic structure shape social life, how economic structures shape social life, how contradictions create change. How classes struggle over resources. And this is where you people have to focus. He argues कि चाहे वो caste हो, nationalism हो, peasantry हो, state हो, all are historical products. Okay, write down this. Thus, caste, nationalism, peasantry, state, all are historical products. Then write down, he opposed approaches that treated society as harmonious or integrated. In short, he criticized functionalism to the core. Okay, so एयर डिसाइड का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं है, सोसाइटी में डोमिनेशन है, सोसाइटी कंटेन्स डोमिनेशन. राइट डाउन, फॉर डिसाइड society contains domination. Institutions often product ruling classes. Okay, society में dominations है at different levels.
ओके इनका कहना था कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं स्पेसिफिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोटेक्टिंग रूलिंग क्लास, दिस इज रूलिंग। अच्छा अब यहां पे देखो दिस पॉइंट कि प्रोटेक्टिंग रूलिंग क्लास, तो रूलिंग क्लास कौन थी इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रूलिंग, फ्रीडम के बाद भी वैसे भी रूलिंग क्लास में जो आपके ब्राह्मण थे या जो जमींदार थे, वही तो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट तो करते थे वो लोग। तो स्टेबिलिटी में हाइड एक्सप्लॉइटेशन। तो रूलिंग क्लास कहीं भी हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इंस्टीट्यूशंस ऑफन प्रोटेक्ट रूलिंग क्लासेस। सिमिलर आर्ग्यूमेंट आपको बाद में देखने को मिलेगा स्टीरट मिल्स का, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है या थ्योरी बनाई है पावर एलीट। बुक्स का नाम लिखिए डिसाई का, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, peasant struggles in India, state and society in India, India's path of development, PATH, India's path of development. तो एयर डिसाई ने एक चीज की, इन्होंने 3 डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ दिया, कंबाइंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्लियर है? अब एक जो इनका वर्क है ना सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अभी आई विल शो यू द पीपीटीज, ओके, वो हम लोग करेंगे एंड देन यू विल सी ऑन दिस दैट हाउ यू पीपल वुड रीड एंड अंडरस्टैंड डिसाई का पूरा आर्ग्यूमेंट। तो एक जो है डिसाई का दैट इज ऑन नेशनलिज्म, दैट वी विल डू। ओके नाउ व्हाट आई वांट, सी योर नोट्स राइट नाउ, जो मैंने अभी बनाया है आपको, और कल की तरह एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स आप लोग बना के मुझे देंगे, बट इट विल नॉट बी ओनली 25 to 50 वर्ड्स, प्रैक्टिस करेंगे। इट जस्ट 1 पैराग्राफ ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर डिसाई। ओके कल मैंने आपको कोई एक अप्रोच बताया था टी स्क्वायर, ठीक है, क्रिटिसिज्म प्लस, पहले कंट्रीब्यूशन बताया, क्रिटिसिज्म बताया। यहाँ पे ये वाला अप्रोच क्या है, कंपैरिजन एंड चैलेंज। कंपैरिजन किससे करोगे कनिष्क? किससे किससे? वेरी गुड, ठीक है, तो कंपैरिजन एंड देन व्हाट, पहले कंपेयर करो, कि पहले आप ये चैलेंज भी पहले लिख सकते हो,
that air design challenges the writings of established theories given to us by like Gure and this, और कंपैरिजन भी कर रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं. तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है. ये हमेशा उसके लिए करो जिन्होंने एक्चुअली में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया हो. चैलेंज वर्ड हमेशा उसके लिए यूज करा करो. ठीक है. तो ये भी कहीं ना कहीं कंपेयर एंड चैलेंज सी स्क्वायर ही आइडिया है यहाँ पे भी. और ये याद रखना, सीरिट मिल्स हो गए या फिर कार्ल मार्क्स हो गया या फिर एयर डिसाई हो गया या कोई भी ऐसे, जैसे कि आज के टाइम में अमर्त्य सेन भी जो थे, जो पूरी थ्योरीज एक प्लेथरा ऑफ लिटरेचर आपके पास है, उसके अगेंस्ट जाके ही कोई एक बात कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज. तो उसको आपको इंट्रोड्यूस भी वैसे ही करना है, राइट? So I'm giving you not more than 7 minutes. Please write down. You people have your notes. Practice it. The more you will practice, the better answer writing would become. Okay, please write down.